हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनगाथा टाइम्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक एंजाइम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहें। फर्स्ट वील टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that function as biological catalysts. They are also called biocatalyst. Now what is a catalyst? A catalyst एक ऐसा substance है जो कोई chemical reaction की speed को increase करता है, पर वो खुद reaction में change नहीं होता। जो enzymes है वो catalyze करते हैं all aspects of the cell metabolism. Now we'll talk about the properties of enzymes. First is कि enzymes are highly specific to the reactions they catalyze. इसका मतलब है कि वो सिर्फ हर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल्टर और स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द सेल। थर्ड इज़ वो खुद जो एंजाइम्स है वो इस केमिकल रिएक्शन में उनका स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन कुछ चेंज नहीं होती, दे रिमेन अनचेंज्ड। फोर्थ इज़ they are affected by temperature. Fifth is they are affected by pH. pH is the concentration of hydrogen ions. And last is they catalyze the reversible reactions. Now next is the distribution of the enzymes. ये नहीं है कि enzymes randomly इधर उधर पड़े हुए हैं, वो specifically located हैं inside the cell. For example जो digestive enzymes हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोई पैनक्रियाज में है, स्टमक में है। और another example is the mitochondria, it has the enzymes of TCA cycle, right? So they are located inside the cells. Classification of enzymes. There are 6 major groups of enzymes. First है oxidoreductases. ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, जैसे इनका नेम सजेस्ट करता है, ऑक्सीडोरेडक्टेसेस। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। इसका एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ना सेकेंड आदि ट्रांसफरेजेस, जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है ट्रांसफ़र, तो ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर। इसके एग्जांपल्स हैं ट्रांसएमिनेजेस, एलानाइन ट्रांसएमिनेजेस एग्जांपल ऑफ दिस, हेक्सोकाइनेज। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफरेजेस, दे ट्रांसफ़र अ पर्टिकुलर ग्रुप। थर्ड आर हाइड्रोलेजेस, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, दे cause hydrolysis of a substrate, that is they catalyze hydrolytic cleavage. इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, amylase, pepsin. These are amylase and pepsin, these are the digestive enzymes, so these are hydrolases. Then fourth group is isomerases. What are they responsible for? They are responsible for change of the molecular form of the substrate. Example is fumarase, phosphohexoisomerase. The next are the lyases. They are the non-hydrolytic, they are responsible for non-hydrolytic removal of a group or addition of a group to the substrate. For example is of these lyases is aldolases, decarboxylases, fumarases. And the last group is ligases. Ligases or synthetases, as the name suggests, they join two substrates, usually using energy. Example is glutamine synthetase, citric acid synthetase. So this is about the classification of enzymes. Now the portions of the enzymes. Enzymes are composed of an apoprotein. Apoprotein क्या है? प्रोटीन पोर्शन है जिसमें अमीनो एसिड चेन्स हैं। सेकेंड है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट, इट जस्ट एक्टिवेट्स द एंजाइम।
Third is HOLOENZYME or conjugated enzyme. Both cofactor and LAPO enzymes, they help to form a conjugated enzyme, which is called a HOLOENZYME. Now next is the substrate and the active site. Now how do the enzymes operate? They operate by binding to the substrate. Or active site या catalytic site कौन सी है? It is the portion of enzyme where substrate binding occurs. See the diagram. Now is the mechanism of action of enzymes. An enzyme catalyzed reaction, it is initiated when enzyme binds to its specific substrate. So for this, the whole mechanism is similar to lock and key operation. So two theories were given. The first one was lock and key theory. This theory was postulated in 1894 by Emil Fischer, and in this analogy, lock is the enzyme and key is the substrate. Only a correctly sized key, means only a particular substrate, fits into the keyhole, which is the active site of the lock. So only correctly shaped key opens a particular lock. Same way, a specific substrate will attach to a specific active site of the enzyme. Second is the induced fit model. What does it explain? It explains the specificity of enzyme as well as the changes taking place during catalysis. This was given by Koshland. उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो एंजाइम्स है वो फ्लेक्सिबल है और जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो जाती है बाय द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट. इसका मतलब वो ये कह रहा था कि जो सबस्ट्रेट है वो एक कन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस करता है एंजाइम में, तो वो खुद ही जो है अपने आप को वहाँ पे फिट करता है. Now we'll talk about the factors affecting the rate of enzyme action. First factor है temperature. Enzymes have an optimum temperature at which they work fastest. Optimum मतलब एक ऐसा temperature जहाँ जिस point पे reaction सबसे fast हो रहा है. जब तक तो optimum temperature attain होता है तब तक तो जो rate of reaction है वो increase हो जाता है. But above the optimum temperature, the rate of reaction decreases. दूसरा फैक्टर है pH ऑफ द मीडियम. पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इंक्रीजेज स्लोली विद इंक्रीज इन pH एंड रीचेज अ मैक्सिमम एट द ऑप्टिमम pH, और फिर उसके बाद फिर से डिक्लाइन करने लग जाता है स्लोली. जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम pH है 7 to 9. नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. जो रिएक्शन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के. जब तो पहले एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तब क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होती जाएगी. लेकिन जब एक ऐसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगी एंजाइम्स की जब सारा सबस्ट्रेट ही बाइंड हो चुका है, तब कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. देन इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद वो फिर कांस्टेंट हो जाता है. नाउ विल टॉक अबाउट एंजाइम इनहिबिशन. द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन brought about by addition of a chemical substance is called enzyme inhibition. और जो सब्सटेंस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनहिबिटर. जो एंजाइम इनहिबिशन है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सो फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है कि जिस साइट पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था वहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया है, तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. मीन्स कोई और मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से कंपटीशन कर रहा है एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए. सेकंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इनहिबिटर है
उसकी ना तो स्ट्रक्चर ना कोई सिमिलैरिटी है सबस्ट्रेट से, इसलिए वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करेगा, बट वो कहीं और ही बाइंड कर जाएगा एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट। लेकिन वो कैसे इनिबिशन करेगा, जो एक्टिव साइट है उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा। जब उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो गई तो सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, क्योंकि इसमें एक्टिव साइट के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, जो इनिबिटर है कहीं और ही बाइंड करके इनिबिशन कॉज करी जा रहा है। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू ऑल. If you have any queries regarding the topic, you can leave a comment in the comment section or you can call me. My contact number is being displayed on the screen. Thanks for watching. God bless you all.